as we know, to listen and to reflect on a very important topic, that is survey research. I, Rifa Tabassum, a research scholar in the Department of Political Science, Aligarh Muslim University, welcomes you all on this platform of IRSA and heartily welcomes my mentor and a very, very renowned professor of political science, Professor Mirza Asmar Beg, sir. Sir, I welcome you on this platform, and I'm obliged to you as you accepted our request and spare time for us. So, sir, welcome on this platform. And before going ahead, I like to give a brief introduction of uh, of our guest for today's session, Professor Mirza Asmar, sir. Sir is a former dean, Faculty of Social Sciences, Aligarh Muslim University. He is currently serving as a professor in the Department of Political Science, Aligarh Muslim University. He specializes in international relations and strategic studies. His doctoral work was awarded the Best Dissertation Prize by the American Studies Research Center, Hyderabad. Uh, he has a keen interest in electoral studies and Muslim politics in India. His work has been published in journals like Roundtable, the Commonwealth Journal of International Affairs, Economic and Political Weekly, etc. He is a fellow of the Salzburg Global Seminars, Austria, and he was a visiting scholar in Fulbright program at Southern Illinois University in 1999. He is the UP State Coordinator for the academic surveys conducted by the Center for the Study of Developing Societies. Uh, his work has been published in many journals, uh, and he is going, and his efforts are going as well in these years also. So he is like in brief, I can say that Sir is a brilliant educator, a kind-hearted, at the same time, one of the most renowned and influential personality of AMU. Sir, now I like to give the stage to you and kindly proceed with your views on survey research and uh, Thank you, Rifa. Fine, it's done. Thank you. So I'll start. I'll mix up the language because some people would be more comfortable in Hindustani. So the Yes, most sir. important thing is Bilingual is to better. Yes, sir. uh, Yes. the important thing is to talk and to actually be able to communicate to students. So I understand that all of you are research scholars undertaking research at different stages in your doctoral work. So straight away coming to survey research, actually survey research is one of the very important methods of doing research. What actually happened that in the 20th century, in the early part of the 20th century, what was there was that methodological purity was something which was very important. What does this mean? This means that people were very obsessive with what method they were following, means in terms of quantitative and qualitative research. तो ये होता था कि साहब पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेज में ज्यादातर हमारे जैसे डिसिप्लिन में क्वालिटेटिव रिसर्च होगी जो किसी फिनोमेना की क्वालिटी को तलाश करने की कोशिश करती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है जिसपे कोई चीज मेजर की जाती है किसी फिनोमेना के बारे में जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल होता है वो हमारे सब्जेक्ट की चीज नहीं है तो एक बड़ी क्लियर कट बाउंड्री लाइन थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में और जाहिर सी बात है कि सर्वे रिसर्च बेसिकली एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें हम एक मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कुछ चीजों को समझने के लिए जिसके बारे में हम आज बात करेंगे तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके बहुत से मेथड्स हैं बहुत से तरीके हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं जैसे एथनोग्राफिक मेथड है केस स्टडी मेथड हमारे यहाँ होता है हिस्टोरियोग्राफी मेथड होता है कंटेंट एनालिसिस मेथड होता है फोकस ग्रुप मेथड होता है और
और तरह के मेथड्स हैं, आर्काइवल मेथड है रिसर्च का, लेकिन हम बेसिकली बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च, जिसको सर्वे रिसर्च कहते हैं। तो जो बात मैंने शुरू की थी कि पहले एक बाउंड्री थी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में, लेकिन धीरे धीरे रिसर्चर्स को बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी धीरे धीरे समझ में आया कि साहब ये जो बाउंड्री है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस रिसर्च में होता है किसी चीज को समझना, उसको स्टडी करना, और ये मेथड्स जो है दीज आर जस्ट टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे कोई सर्जन होता है जो सर्जरी कर रहा है अपने ऑपरेशन थिएटर में, तो उसके आसपास उसके नर्स और दूसरे असिस्टेंट जो हैं 10 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लेके खड़े होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता रहता है और फिर ऑपरेशन करता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑपरेशन सही होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज हुए या कम हुए या ज्यादा हुए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स आर ओनली अ मीन्स टू ऑपरेट अपॉन दैट पेशेंट एंड क्योर दैट पेशेंट। सिमिलरली इन आवर रिसर्च ऑल्सो these methods are just instruments। तो आज रिसर्च में ये माना जाता है, सोशल साइंसेज में और पॉलिटिकल साइंस या दूसरे सोशल साइंसेज में, कि साहब मेथड जो है या मेथोडोलॉजिकल प्योरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि आप कैसा, मैंने सिर्फ एक मेथड फॉलो किया और हम दूसरे मेथड में कैसे घुस गए, ऐसा नहीं। सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उस चीज को स्टडी कितनी अच्छी तरह कर पाते हैं, और जो मेथड भी जिस एस्पेक्ट को स्टडी करने में हमें मदद करेगा, हम उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आई डू अ लॉट ऑफ इलेक्शन स्टडीज। So earlier when election studies used to be done, or whatever kind of election studies used to be done in the past, people used to explain things, for example, in India, if elections are being studied, people is used to study the communal issues in elections, the caste issues in elections, the regional issues in elections, and all kinds of issues were analyzed and understood very nicely, fine. But they were very complex analysis and they were only descriptions. Now what we do is that we also use the quantitative methods, especially the survey method. What the survey method gives us, the survey method gives us certain very concrete facts. Now what happens that we bring those two things together, the explanation and the survey data. So how does this help? This helps the reader very much in placing the things in proper perspective. जब हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन के बारे में, यूपी इलेक्शंस की बात हो रही है, मैं यूपी में काम करता हूं, तो यूपी इलेक्शन की बात हो रही है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यूपी के किसी इलेक्शन के बारे में, तो हमने बगल में एक आपको एक चार्ट भी दे दिया, एक डेटा दे दिया, एक टेबल बना के दे दिया कि साहब इन कास्ट्स ने पिछले इलेक्शन में इस पार्टी को वोट दिया था इस परसेंटेज में, इस इलेक्शन में इस परसेंटेज में वोट दिया है, एंड सो ऑन, बाकी और चीजों के बारे में। तो क्या हुआ, आप मेरी एनालिसिस पढ़ रहे हैं या जिस भी रिसर्चर की एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन है और साथ में आपके सामने वो टेबल मौजूद है, तो टेबल क्या है, वो आपको हेल्प कर रहा है उस एनालिसिस को समझने में, और एक सेकंड में आपके सामने वो पूरी चीज आ गई कि कैसे किस पार्टी को कितने वोट मिले, किस रिलीजन के लोगों ने किस पार्टी को कितने परसेंटेज में वोट दिया, किस कास्ट ने किस परसेंटेज में वोट दिया, मेल फीमेल में किस परसेंटेज में वोट दिया, रूरल लोगों ने किस परसेंटेज में वोट दिया, अर्बन लोगों ने किस परसेंटेज में वोट दिया, एंड सो ऑन। तो वो सारे सॉरी जो टेबल्स हैं, पाई चार्ट्स हैं या और दूसरे मेथड से हमने उस चीज को इलस्ट्रेट किया है, तो वो हमारी इस एक्सप्लेनेशन को स्ट्रेंथन करती है। हम लाख आर्गुमेंट देते रहे कि फला कास्ट ग्रुप ने फला पार्टी को वोट दिया ज्यादा और दूसरी कास्ट ने कम वोट दिया, उससे वो बात उतनी स्पेसिफिक नहीं होगी जब हम लिखेंगे कि साहब इस परसेंटेज में फला कास्ट ने 53% फॉर एग्जांपल इस पार्टी को वोट दिया, और पिछली बार 42% वोट दिया था उन कास्ट के लोगों ने, तो इसका मतलब कि 11% ज्यादा उस कास्ट के लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, एंड सो ऑन, और उसके बेस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो कोई भी पढ़ने वाला आदमी बहुत सिंपली आसानी से उस चीज को समझ सकता है। तो रिसर्च का काम क्या है कि उस चीज को, जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कहीं भी है किसी फील्ड में, उसको सिंप्लीफाई करके आसानी के साथ आपके सामने पेश करें। ठीक है, तो ये जो सर्वे मेथड है, इसके अंदर क्या चीज होती है, इसमें कई एस्पेक्ट्स होते हैं, और हम उन एस्पेक्ट्स के बारे में आज आपसे बात करेंगे और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इन डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हैं सर्वे के जरिए,
और हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्शन का आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि इस बार उस इलेक्शन में क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ था या उससे पहले क्या हुआ था, और किस तरह से वोटिंग शिफ्ट हो रही है किसी एक पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी से दूर जा रहे हैं वोटर्स, और कौन से वोटर्स दूर जा रहे हैं, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से समझ रहे हैं कोई लोग या किसी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसका वोट शिफ्ट हो रहा है। तो क्वांटिटेटिव मेथड की खास बात क्या है कि वो हमको किसी भी सवाल का, जो भी क्वेश्चन हमारे सामने रिसर्च का है, उसको नंबर्स में आंसर करने में मदद करता है, और जब हमारे पास नंबर्स होते हैं तो वो उस फाइंडिंग को क्वांटिफाई कर देते हैं। मतलब कोई भी चीज कितनी, इस पार्टी का सपोर्ट बढ़ा है, इसका घटा है, ये तो दूसरे लोगों को भी नजर आ रहा है, एक आम ऑब्जर्वर को भी नजर आ रहा है, लेकिन कितना बढ़ा है एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, और कितना घटा है और उसके क्या रीजंस हैं, जब इस तरह से बात की जाती है तो चीजें ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है और रिसर्च ज्यादा यूजफुल हो जाती है। ठीक है, तो अब यही चीज जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च which is done as a result of survey research। जैसे अगर इस तरह की कोई रिसर्च होती है फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इलेक्शन में, जैसे यूपी में किसी पार्टी को किसी इलेक्शन के अंदर 40% वोट मिले, दूसरी पार्टी को 14% वोट मिले, तीसरी पार्टी को 20% वोट मिले, एंड सो ऑन। तो हम उस बेसिस पर और फिर उसके पहले के डेटा के बेसिस पर हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, और उस कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस पर हम बहुत सी चीजें बता सकते हैं या बहुत सी चीजें जान सकते हैं कि कौन से फैक्टर इस शिफ्ट को एग्रेवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी और अगेंस्ट अनदर पार्टी। Now the question is that why is survey research and such an important research tool? It is such an important research tool, as I was just now mentioning to you, because of the evidence it gives us. Because in research, the most important thing is evidence. तो अभी तक हमारे यहाँ सोशल साइंसेज में जो पहले एविडेंस होता था वो ज्यादातर क्वालिटेटिव एविडेंस होता था, ज्यादा, कम, तेज, हल्का, इस तरीके से हम एविडेंसेस तलाश करते थे। लेकिन आज हम फैक्ट के फॉर्म में एविडेंस तलाश करते हैं। ठीक है, और वो फैक्ट वो है जो हम, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आम लोग बोलते रहते हैं कि साहब ये ऐसा हुआ इलेक्शन में, तो पता ही है कि साहब हेलो सारे लोग ने इस पार्टी को वोट दिया होगा। तो हेलो हम क्या करते हैं कि ये बात तो पता है कि साहब हेलो ज्यादा लोगों ने किसी पार्टी को वोट दिया कि वो पार्टी जीती, लेकिन जो स्मॉलर फैक्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो वहां तक हमको लेके हेलो गए, तो वो फैक्ट के बारे में हम ब्रॉडली तो हमको जानते हैं, लेकिन हमको हेलो उन फैक्ट्स को वेरीफाई करने की जरूरत है। तो जो सर्वे रिसर्च होती है उसकी फाइंडिंग्स जो है उन फैक्ट्स को कंफर्म करती है। जो भी फैक्ट्स आप समझ रहे हैं, आपके सामने फैक्ट्स हैं, हम उसको कंफर्म करते हैं या उसको रिफ्यूट करते हैं। जैसे कई इलेक्शंस में ऐसा होता है, या मैं इलेक्शंस की आपसे बात कर रहा हूं इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोगों को लगता है, आम पब्लिक को लगता है, या अक्सर अखबारों में जो चीजें आती हैं उसमें लगता है कि ये फैक्टर था जिसकी वजह से फला पार्टी इलेक्शन में जीती। बात समझ रहे हैं, या फला सेक्शन ने उस पार्टी को ज्यादा वोट दिया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता जब हम सर्वे की फाइंडिंग पे जाते हैं। बात समझ रहे हैं, तो सर्वे की फाइंडिंग हमें एग्जैक्ट चीजें बताती है कि ये चीज थी जिसकी वजह से, या ये फैक्टर्स थे। एक फैक्टर तो यूजुअली नहीं होता जिसकी वजह से किसी पार्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट इलेक्टोरल विंड ने चेंज लिया। सो सर्वे इज अ टेक्निक, rather it is a system of collecting information from a smaller number of people which is known as a sample। तो जिन लोगों से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं सर्वे रिसर्च में उसको हम कहते हैं सैंपल, which helps us to describe, compare or explain the attitudes and behavior of a large number of people। बात समझ रहे हैं आप? जैसे कि करोड़ों लोग रहते हैं यूपी में, तो उन सारे लोगों से जाके तो पूछा नहीं जा सकता, या उनसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जा सकते, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज पे, चाहे इलेक्शन का सर्वे हो या किसी और चीज का सर्वे हो। तो हम क्या करते हैं, सर्वे मेथड में हम एक सैंपल लेते हैं, मतलब उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव छोटा ग्रुप जो एग्जैक्टली उतनी ही वैरायटी रखता हो जितना कि उस पूरे पॉपुलेशन के अंदर है, और उस ग्रुप को हम अपना सैंपल बताते हैं।
अच्छा, सैंपल इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे जब आप इलेक्शन वगैरह होता है तो अखबार में, टीवी में बहुत से सर्वेज आते हैं, फला ने सर्वे किया और फला एजेंसी, में किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब जानते हैं, सारी एजेंसीज देती हैं, और जब वो सर्वे की बात टीवी अखबार में आती है तो उस बात पे बड़ा एम्फेसिस देते हैं कि साहब हमने कितने लोगों को इंटरव्यू किया। कोई कहता है हमने 50,000 लोगों को इंटरव्यू किया, 60,000 को इंटरव्यू किया, और उससे आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा सर्वे बहुत रिलायबल है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बात वो कह रहे होते हैं उसके जो चीज होती है उसके एग्जैक्ट उल्टी हो जाती है, जो उन्होंने कहा उसके आसपास भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, कभी कभी उसके वैसा हो भी जाता है। लेकिन बेसिक चीज ये कि वो सारे सर्वेज जो हैं वो नॉन साइंटिफिक सर्वेज हैं, अकेडमिकली नॉन रिलायबल सर्वेज हैं। समझ रहे हैं? क्यों नॉन रिलायबल है? क्योंकि उन्होंने वो मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं करी है जो सर्वे रिसर्च की यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथड की यही खूबसूरती होती है कि वो एक ऐसी चीज होती है जो पूरी दुनिया में सेम होता है। तो कोई भी रिसर्च का मेथड आज इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूएई में कहीं भी होगा, अगर वो मेथड यूज होगा तो मेथड वही है जो हर जगह यूज हो रहा है और वो पूरी दुनिया उसको मान रही है। अगर कोई आदमी उस चीज का नाम तो यूज कर रहा है लेकिन वो मेथड के प्रोसीजर को चेंज कर देता है या उसको नहीं फॉलो करता तो उसकी फाइंडिंग रिलायबल नहीं होगी। जैसे अभी जब रिफा ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बताया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूं जिसका नाम है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। एक दिल्ली में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, बड़ा मशहूर, और हम सर्वे रिसर्च करते हैं। तो पूरी दुनिया में कोई भी स्कॉलर कहीं पर भी हो, इंडिया में या कहीं भी, जब वो इंडियन इलेक्शंस पे कोई भी बात करता है या इंडियन इलेक्शंस पे कुछ भी लिख रहा होता है तो जितने भी सर्वे आप देखते हैं टीवी में, अखबार में, कहीं भी, उसमें से किसी का भी कोई डाटा यूज नहीं करता। वो अगर जो भी डेटा यूज करता है वो सीएसडीएस के सर्वे का ही यूज करता है, या खुद उसके पास कोई डेटा हुआ छोटा मोटा, नहीं तो मेन डेटा जो है वो सीएसडीएस का यूज करता है। ऐसा क्यों करता है? हमको तो बहुत से लोग जानते भी नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं ना, हम टीवी पे हर जगह आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं हमारे राइटअप्स अखबार वगैरह में, लेकिन इतना हमारा विजिबिलिटी नहीं है पब्लिक स्फीयर में। क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिवर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि रिसर्च का एक यूनिवर्सल प्रोसीजर है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन इनमें से कोई भी सर्वे रिसर्च जो कर रहे होते हैं और जो अपने बारे में बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे होते हैं वो यूजली उन सर्वे के टेक्निक को नहीं फॉलो करते, उनका प्रोसीजर सही नहीं है, उनका फील्ड वर्क सही नहीं है, उनके डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर सही नहीं है। इसलिए क्या होता है, उनको पहली बात तो माना नहीं जाता, उनकी एकेडमिक लेवल पे कोई रिलायबिलिटी नहीं, और दूसरी बात है कभी इत्तेफाक से उनका रिजल्ट सही आ गया तो कहें साहब हमने तो बड़ा अच्छा किया, वो तो इत्तेफाक की बात है, एक दो बार उनका सही भी आ गया। ऐसे कोई आदमी बगैर सर्वे के भी कोई बात कह दे उसकी बात भी सही हो सकती है, लेकिन उनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। अगर वो प्रोसीजर को फॉलो करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका रिजल्ट सही आता, लेकिन उसके बहुत से रीजन हैं। एक रीजन तो ये कि भाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट और पॉलिटिकल रीजन हैं जो उनको फंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्शन सर्वे मैं करवा रहा हूं अपने पैसे से तो मुझे ही जीतता हुआ दिखाएगा, आपको तो दिखा दे नहीं देगा। उसके और भी रीजन हैं, तो बड़े मार्केट फोर्सेज हैं, पॉलिटिकल रीजन हैं जो इन सारे सर्वेस को कलर्ट कर देते हैं। बट एनीवे द मेन पॉइंट इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर एज अ वैलिड सर्वे rather instrument, and the basic reason is that they are not following the protocol. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये सर्वे में पहली स्टेज क्या है कि सैंपल जो है वो हमारा रिलायबल होना चाहिए, या सैंपल हमारा सही होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो सर्वे का सैंपल कैसे सही होगा सर? उसका क्या तरीका है? क्यों? क्योंकि अगर हम सैंपलिंग ही सही नहीं करेंगे तो फिर पहले ही स्टेज पे मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि सैंपल में वो लोग आने हैं जो जिनको हम इंटरव्यू करने वाले हैं या जिनसे हम डेटा लेने वाले हैं। अगर वो लोग सही से सेलेक्ट नहीं हुए तो हमारा डेटा जो है वो अनरिलायबल हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा जो सैंपल है, जो हमारा जो ग्रुप है जिसको हम सैंपल कर रहे हैं, वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तो अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग अ सर्वे, और we would be able to draw a representative sample only if the sampling has been done with a scientific method. तो ये सैंपल क्या है साहब? सैंपल एक्चुअली इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन अगर
20 लाख है, उसमें हमने लिया 1000 लोग, तो 1000 लोग हमारा सैंपल हो गए, और वो 20 लाख है जो भी मैंने गिनती बोली थी, वो लोग उसका यूनिवर्स हो गए। तो जो आपका जो सैंपल साइज है वो गाइड होता है दो चीजों से, एक तो आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस और एक साइज ऑफ द यूनिवर्स। अगर बहुत बड़ा यूनिवर्स है, पूरे मुल्क में आप सर्वे कर रहे हैं, तो बहुत छोटे सैंपल से आप नहीं कर सकते, आपका सैंपल काफी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा वैरायटी है और इतनी वैरायटी के लोग हैं, अगर उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हमारे सैंपल में नहीं होगा तो हमारा सैंपल जो है वो रिलायबल नहीं होगा। तो हम बहुत सोच समझ के उस सैंपल को बनाते हैं और उसको डिसाइड करते हैं कि साहब उसकी क्या साइज होनी चाहिए। तो अब जो सैंपलिंग की जाती है उसकी ब्रॉडली स्पीकिंग दो कैटेगरीज हैं या दो टेक्निक्स हैं। पहली है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड द अदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये दो तरह की सैंपलिंग सर्वे रिसर्च में की जाती है। नाउ द फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी टेक्निक और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। This is a technique which ensures that the chances of being selected in the sample of each and every universe unit in the universe is equal. मतलब हम जैसे इस शहर में फॉर एग्जांपल रह रहे हैं और हमारे शहर में कोई सर्वे हो रहा है, तो हम में से हर इंसान जो इस शहर का शहरी है उसका चांस ऑफ सिलेक्शन उस सैंपल में जाने का बराबर है। समझते हैं? ये चीज तभी पॉसिबल है जब हमारे पास उस पूरे शहर की लोगों की एक लिस्ट होगी, मतलब सबके नामों की एक लिस्ट हो, तभी ये पॉसिबल है कि हर इंसान का इक्वल चांस होगा उसमें सिलेक्शन में और हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर पाएंगे। ये जैसे हम इलेक्शन स्टडीज में करते हैं तो हम वोटर्स के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी टेक्निक लगाते हैं। तो वोटर्स की तो वोटर्स लिस्ट है, आपको पता है सारे वोटर्स की लिस्ट है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे हिंदुस्तान की। तो हम क्या करते हैं, जब इस टेक्निक को लगाते हैं तो हर वोटर का इक्वल चांस होता है कि वो इस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर सिलेक्ट हो सकता है जब हम उस टेक्निक को लगाते हैं। द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इज अ टेक्निक where chances of being selected in the sample of each and every unit of the universe is not equal. कभी कभी हम किसी ग्रुप को सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड कर देते हैं, किसी लोकेशन को सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो सैंपल में आ ही नहीं सकती कि हम उस जगह पे करेंगे ही नहीं, वो लोकेशन ही नहीं हम कंसिडर करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहां के लोग नहीं आएंगे। या किसी सेक्शन को हमने एक्सक्लूड कर दिया कि साहब इसमें तो लेडीज का सिर्फ सर्वे हो रहा है, मेन इसमें है ही नहीं, तो उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया, या किसी और सेक्शन को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बेसिकली मैं आज बात कर रहा हूं आपसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, जिसके अंदर तीन तरह से हम करते हैं। एक तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, दूसरी होती है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, और तीसरी होती है मल्टी स्टेज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। तो जब हम किसी जगह इलेक्शन स्टडी करते हैं, मैं उसी का एग्जांपल आपको देता हूं, दैट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। अब उसमें हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जैसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है अलीगढ़, कोल हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ बहुत से पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो पोलिंग स्टेशन अलीगढ़ में से फॉर एग्जांपल अगर 300 हैं, तो वी कैन नॉट गो, या मैं मतलब खैर वो सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 300 पोलिंग स्टेशन हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमें उन 300 पोलिंग स्टेशन में से फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि हमको 20 पोलिंग स्टेशन पे करना है, क्योंकि हम 300 पे नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि हम इट्स नॉट पॉसिबल टू डू रादर इंटरव्यूज ऑफ ऑल द पीपल। तो हमने डिसाइड किया कि साहब चलिए 300 में अगर 20-25 का कर लेते हैं तो ठीक है। तो हमने 20 या 25 डिसाइड किए। तो 20-25 डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारे पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखेंगे 1 से लेकर 300 तक, और फिर उसके अंदर हम ये तलाश करेंगे कि कौन से पोलिंग स्टेशन में हमें जाना है। अब ये वो मेथड ऐसा है जो कि टेक्निक हमें बताएगी कि कौन सा पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट होगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। The moment I start deciding, there will be some bias because I will not be able to select the most representative
constituencies. So what I need to do is that I need to be guided by the method. तो हम क्या करेंगे कि हम फॉर एग्जाम्पल हमको जैसे मैंने बताया आपको 20 लेनी है, तो हमने 1 से 20 नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें से कोई एक हम आंख बंद करके सेलेक्ट कर लेंगे। यार आंख बंद करके उसमें आपने उंगली रख दी, आपने 5 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर पोलिंग स्टेशन नंबर 5 आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 5 नंबर वाला सेलेक्ट कर लिया। अब आपको 20 सेलेक्ट करनी है, तो अगला पहला तो आपने सेलेक्ट किया किसी तरह से एक रैंडम नंबर कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम 1 to 20, क्योंकि 20 आपके पास होने, और आपने जैसे 5 नंबर सेलेक्ट किया तो 5 में 20 प्लस करेंगे। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी पोलिंग स्टेशन होगा नंबर 25, 25 में आपने 20 ऐड किया 45, अगला है नंबर 45, फिर आपने 20 उसमें ऐड किया, अगला है 65। ऐसे करते करते आप 300 के एंड तक पहुंच जाएंगे और आपको 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज मिल जाएंगी जो इस मतलब रैंडम टेक्निक से जरिए एक सिस्टमैटिक रैंडम के जरिए आपने सेलेक्ट की। अब आप जो सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं समझ लें उसके अंदर आप जाएंगे और उन सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस हैं, उन पोलिंग स्टेशंस में आप जाएंगे और उन पोलिंग स्टेशंस की वोटर्स लिस्ट को निकालेंगे। और फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया है कि हर वोटर लिस्ट में से, जिसमें करीब 700-800 लोग होते हैं एक वोटर्स लिस्ट में, कुछ कभी कम कभी ज्यादा किसी पोलिंग स्टेशन पे, तो फॉर एग्जांपल 800 लोग हैं और आपने डिसाइड किया कि यहाँ भी हमको 25 लोग लेने हैं इसमें से, तो उसमें भी आप किसी एक आदमी को आंख बंद करके 1 से लेकर 25 नंबर के सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल 10 नंबर के आदमी को सेलेक्ट किया जो 10 नंबर पे वहां है, तो देन यू 10 में आप 25 ऐड करेंगे, फिर उसके में फिर 25 ऐड करेंगे और ऐसे करते करते एंड तक चले जाएंगे और आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनको आपको जिनसे आपको इंटरव्यू लेना है। तो ये जो लोग आए आपके पास, यही चीज आप पूरे स्टेट में बढ़ा सकते हैं और यही चीज पूरे मुल्क में होती है जब हम नेशनल लेवल का सर्वे कर रहे होते हैं। So the point basically is that here what we did was that we followed a procedure to select our sample. तो यहां पर सैंपल का बड़ा होना या छोटा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैंपल का एक प्रोसीजर के जरिए मेथड के जरिए सेलेक्ट होना जरूरी है। अब इसकी क्या ब्यूटी है? When I do this multi-stage systematic random sampling here, what happens eventually that my sample will be an exact approximation of the diversity of the population. जब मैं ये सैंपलिंग टेक्निक पूरे स्टेट में फॉर एग्जांपल यूपी में कर दूंगा, तो यूपी में क्या होगा, जब मेरा जो सैंपल आएगा उसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप रिलीजन लीजिए, इफ यूपी हैज से 83% people belonging to the Hindu religion, my sample also would have 83% people who are Hindus as far as the enumerated religion is concerned. If UP has 18% Muslims, my sample also would have 18% Muslims, and so on. If UP has 45% people, it is just an example I'm saying. If UP has 45% people living in urban areas and 55% people living in rural areas, exactly the same composition will be there of my sample. अगर यूपी में किसी कास्ट के क्या नाम है दलित जो है वो 40% है फॉर एग्जांपल, और बाकी सारे कास्ट जो है जितने भी जो भी उनका कंपोजिशन है एग्जैक्टली वही मेरे सैंपल में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जो भी समाज में डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट आप सोच सकते हैं, डिवीजन और डिसेक्शन का लेवल आप सोच सकते हैं, हर वैरायटी उसी परसेंटेज में मेरे सैंपल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, मैंने तो एक प्रोसीजर को फॉलो किया। लेकिन वो प्रोसीजर की ब्यूटी ये है इस मल्टी स्टेज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक की, दैट इट विल yield you a sample which is an exact approximation of the universe in which you are trying to do it. So when we do a survey at the time of the general elections, like last time in the general elections when we do a survey of around 35,000 people in the whole country, and those 35,000 people give us a sample which is the exact approximation of the total voting population of the country. So that is the beauty of this method. The problem with those methods is, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, कि वो मेथड जो है नंबर्स को तो बहुत लेते हैं लेकिन वो इस डाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। तो पता लगा कि वो सारे सर्वे उन्होंने शहरों में कर लिए, ट्रैफिक इंटरसेक्शंस पे कर लिए, इतने लोगों से बात कर ली और आपको बता दिया। एक्चुअली उन्होंने बात की होगी कि हमने साहब तो 80,000 लोगों से बात की, लेकिन वो चाहे 80,000 से बात करें या 1 लाख से बात करें, लेकिन क्योंकि उनका जो सैंपल है वो एक साइंटिफिक सैंपल नहीं है, इसलिए वो 1 लाख लोग भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या 10 लाख लोग से भी बात कर लें
तो इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते उस डाइवर्सिटी को, और उनके मुकाबले हमारे 35,000 लोगों का जो सैंपल है वो ज्यादा सही बात बोलेगा या सच बात बोलेगा जो हिंदुस्तान के लोग फील कर रहे होंगे किसी भी इशू, समझ रहे? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मेथड को डाइल्यूट करने की, समझ रहे? तो ये चीज हमें करने की जरूरत है। अच्छा, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स है उसमें भी 3 बेसिक तरीके से की टेक्निक्स हैं। एक है कन्वीनियंस सैंपल, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ये लिस्टिंग मौजूद नहीं होती, तो आप अपनी कन्वीनियंस से, अपनी आसानी से जितने लोगों से भी बात करना चाहते हैं किसी जगह पर आप गए, पता लगा किसी शहर में आपने 200 लोगों से बात करनी है तो 200 लोगों से बात कर ली, जो 200 लोग आपको मिल गए या 200 लोगों से आप मिल पाए, क्योंकि आपके पास कोई लिस्ट नहीं है जिसके जरिए आप ये सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल somebody is doing a historical research, something which is very old, or research about someone you know who was a very great person and he died maybe some time back, तो आप कहीं जाते हैं, आपको उस आदमी के बारे में जानना है, तो आप पता करते हैं कि कौन आदमी बता सकता है, पता लगा साहब वो आदमी तो 20 साल पहले कोई बहुत बड़े इंसान थे, वो उनकी डेथ हो गई है, तो पता लगा साहब एक कोई आदमी कहीं है, वो उनके क्लासमेट रहे हैं या कुछ थे उनके जानने वाले, उनसे आप बात कर सकते हैं, तो आप उस आदमी को खोजते हुए, तलाश करते हुए उस आदमी तक पहुंचते हैं। वो आदमी फिर आपको किसी और का पता बताता है कि नहीं यार वो उनका ड्राइवर था, वहां रहता है, उससे आप मिल लीजिए। फिर उसके पास जाते हैं, वो किसी और का पता बताता है, तीसरा किसी और के बारे में बताता है, इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, जहां आपके पास मालूम नहीं कि किससे बात करनी है, आपके बहुत बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन वो भी आप, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दोज पीपल. So eventually what happens that you go to some people or somebody or a few people and they guide you to some other people, and eventually you manage to reach uh, a significant number of people, you know, who can give you an idea about that event, that occurrence, that person, or something which had happened in the past. उसी तरह कोटा सैंपलिंग होती है जिसके अंदर एक आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस तरह के, इस टाइप के लोगों का या इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के इतने लोगों को हमको इंटरव्यू करना है, तो आप उस नंबर्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं, और दैट इज हाउ यू नो यू गेट दैट कोटा, दैट नंबर ऑफ पीपल whom you want to interview in a survey research. अगला सवाल ये कि कैन ओनली अ गुड सैंपल गारंटी अ गुड सर्वे? मतलब क्या यही सब कुछ है कि आपके पास एक सही नंबर ऑफ लोग आ गए और सैंपल सही से आपने ड्रॉ कर लिया जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो आपका सर्वे अच्छा हो जाएगा? नहीं। उसके बाद दूसरे इश्यूज भी आते हैं। अगला इशू क्या है? क्वेश्चनर डिजाइन का, फील्ड वर्क का, डेटा कलेक्शन का, कोडिंग का, चेकिंग एंट्री और एनालिसिस का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज द क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर क्या है आपको पता ही है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन हमें पूछने हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन क्वेश्चन से ही आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला आदमी क्या चाहता है या क्या कहना चाहता है। तो questionnaire is a document which contains, you know, more than one question in a very clearly worded format relating to the issue on which you want to make an inquiry. तो ये क्वेश्चनर जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब किसी इंसान के पास जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन सर्वे जा रहे हैं, आपने किसी इंसान का दरवाजा खटखटाया, उससे पूछ लिया, आपने किसको वोट दिया और पूछा और चले गए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ऐसे आप पूछेंगे तो कोई बताएगा नहीं, और बताएगा तो गलत भी बता सकता है, क्योंकि बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से इंसान हमेशा आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब सही नहीं देगा या नहीं दे पाएगा, because there are a lot of societal factors, you know, which influence the person, and many times the person would not like to tell you something which is very sensitive, like voting, and that is the reason why we have the system of secret voting in our country. आप secretly वोट देते हैं। अब क्या है, कभी कभी आप अपने घर वालों को भी बताना नहीं चाहते आपने किसको वोट दिया, खासतौर से आप किसी ऐसी सेटिंग में रह रहे हैं जो हिंदुस्तान में सोसाइटी जिस तरह की आपको पता है, गांव में है, कोई डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट लोग हैं, आपने उनको वोट नहीं दिया जिनको वो चाहते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे मैंने उन्हीं को वोट दिया। तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई जाने कि आपने किसको वोट दिया है, और उससे इलेक्शन से रिलेटेड और आपके जो इंक्लिनेशंस हैं, सारे इश्यूज हैं जो जिनकी वजह से आपने किसी एक को वोट दिया या नहीं दिया, तो हमारे पास तो 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन में देखना है कि व्हाट क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क एंड हाउ दोस क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड,
all these questions cannot be asked very directly, because if you ask those questions directly, maybe the person would not be giving the right answer, or maybe she is unwilling to give the answer. So it has to be very carefully worded. उसकी बहुत एफर्ट लगता है उसमें, महीनों आप उस पर सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने सुपरवाइजर से या जो आपकी टीम है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखा जाए, क्या उसकी वर्डिंग हो, कहाँ पे उसको रखा जाए, कैसे पूछा जाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सही सवाल नहीं पूछ पाए तो सही जवाब नहीं मिलेगा, समझ रहे? तो वो सवाल पूछना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे वो क्वेश्चनर डिजाइन होगा। तो क्वेश्चनर की डिजाइन जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो उसके अंदर आप के रिसर्च के अंदर, सर्वे रिसर्च के अंदर इंपॉर्टेंट है। देयर कैन बी अ गुड क्वेश्चनर, देयर कैन बी अ बैड क्वेश्चनर। अच्छा, क्वेश्चनर के अंदर भी कुछ सवाल ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड सवाल होते हैं। ओपन एंडेड का सवाल का मतलब है कि जिसमें इंसान राय दे रहा है, जैसे आपने पूछा फॉर एग्जांपल इलेक्शन में कि आगे हमारे देश में क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, किसी फील्ड में, कि कैसे हम गरीबी को दूर करें, आपकी क्या राय है। तो उसमें इंसान 2-3 सेंटेंस बोलेगा, जो आदमी जो उसका इंटरव्यू लेने गया वो लिख लेगा। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है वो क्लोज एंडेड होते हैं, यस नो में, कि हम पूछते हैं साहब आपने आपकी समझ से सबसे अच्छा आदमी कौन है जो देश का अगला प्रधानमंत्री बने, फॉर एग्जाम्पल। तो आप उसको ऑप्शन देंगे 4-5 या 3-4-5 जो भी, और उसमें से वो आंसर देगा। आप पूछेंगे साहब कि देश की महंगाई दूर करने के लिए हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर वो उसका जवाब देगा। ठीक है। तो कुछ सवाल उसमें ओपिनियन बेस्ड होते हैं, जिसमें इंसान की ओपिनियन पूछी जाती है, जिससे उसकी सोच पता लगती है कि वो इंसान क्या सोच रहा है किसी पर्टिकुलर इशू पर। और कुछ सवाल फैक्चुअल होते हैं कि आपने किसको वोट दिया। अब आप जाएंगे किसी डायरेक्टली पूछ ले किसको वोट दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कैसे बता पाएगा, वो नहीं बताएगा। तो हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं जिसके जरिए हम उस आदमी का जानना चाहते हैं कि उसने किसको वोट दिया। पहले हम उससे कई सवाल पूछते हैं कि आपकी समझ से कौन लीडर सबसे अच्छा है, किस पार्टी ने ज्यादा अच्छा काम किया है, जो पार्टी अभी पावर में वो अच्छा काम कर रही है कि पहले वाली ने किया। उससे रिलेटेड बहुत से सवाल पूछते हैं, जो सवाल हमें ये बता देते हैं कि उस इंसान ने वोट के सवाल का जो आंसर दिया वो ठीक दिया कि नहीं दिया। और फिर हम उससे डायरेक्टली भी नहीं पूछते हैं, हमने बहुत से तरीके निकाले हैं, जैसे हम आपको जाने वैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बच्चे जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने, वो एक बॉक्स लेके जाते हैं जो सील्ड होता है, और उसको बैलेट पेपर देते हैं, जैसे कि इलेक्शन में होता है कि भैया आप इसमें इलेक्शन में जैसे आपने वोट दिया था आप इस पर निशान लगा के इसमें डाल दीजिए, जिससे कि हम भी नहीं देखें और आप भी नहीं देखें। तो इंसान थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि साहब मैंने वोट डाल दिया, अब तो एनोनिमिटी है मेरी, बिकॉज इलेक्शन में तो एक एनोनिमिटी होती है ना, कि किसी को नहीं पता कि हमने किसको वोट दिया। तो हमको कोशिश ये करनी है कि कितना कंफर्टेबल इस इंसान को करें, जिससे कि वो सवाल को जवाब दे पाए। तो क्वेश्चनर बनाने के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद है कि कैसे वो क्वेश्चनर एडमिनिस्टर किया गया। एडमिनिस्टर मतलब कैसे वो सवाल पूछे गए, कैसे वो उसको वो उन लोगों तक पहुंच के हमने कैसे उस तरह से सवाल पूछे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी क्वेश्चनर लेके चला जाएगा। तो व्हेन वी डू सर्वे रिसर्च वी ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स। हम खासतौर से हम लोग जैसे स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, तो हम उनकी वर्कशॉप करते हैं, उनको पूरा 1-2 दिन बैठा के समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चनर तो हमने बना लिए, लेकिन अब ये क्वेश्चनर कैसे एडमिनिस्टर करनी है, हाउ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। इट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पहुंचे, आप ही सोचिए किसी आदमी का आप घर का दरवाजा नॉक किया और सवाल का जवाब देने लगा, आपका कभी नहीं देगा। अक्सर आप क्या कोई आदमी आता हो सामान बेचने, आपके घर नॉक किया, you'll say no, we don't have time, you are not interested. तो मोस्टली वी आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू दैट पर्सन इज नॉट बीइंग पेड। तो वो एक तरीका है कि कैसे आप रैपो स्टैब्लिश करें, कैसे आप जाएंगे एज ए स्टूडेंट, आप गए किसी इंसान का घर नॉक किया, उसके बात की और उसको थोड़ा कंफर्टेबल किया कि साहब देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, अगर आप हमें थोड़ा समय दे दें, हमसे बात करें, तो शायद हमारे पढ़ाई लिखाई में फायदा हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में अभी भी लोग बहुत अच्छे काइंड हार्टेड हैं। कोई स्टूडेंट जाता है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करता है, तो ज्यादातर लोग टाइम दे देते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम 20 साल से ये सर्वे कर रहे हैं। तो बच्चे जब जाते हैं तो यूजुअली लोग वक्त दे देते हैं। वैसे कोई बेचने वाला है तो लोग डांट के भगा देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो आप पहले अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करते हैं, अपना आई कार्ड दिखाते हैं कि साहब देखिए मैं फलां यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ एंड आई एम एसोसिएटेड विद रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हम ये काम कर रहे हैं। और फिर अगर आप थोड़ा टाइम दे देंगे तो हमारी मदद होगी। फिर आप उस इंसान के साथ बैठते हैं, फिर उसको कंफर्टेबल करते हैं, थोड़ा इधर उधर के सवाल पूछते हैं, फिर उससे बात करना शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अच्छा साहब सवाल शुरू, पहले सवाल के जवाब दीजिए, नहीं। जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा उससे पूछ लेंगे कि हाँ साहब आप अब कंफर्टेबल हैं, अब आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, अब आप विलिंग हैं। तो फिर जब वो इंसान कह देता है कि ठीक है मैं विलिंग हूं, मैं सवाल का जवाब दूंगा, तभी आप उसका
इंटरव्यू लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्वे रिसर्च जो है वो एक रिसर्च है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज है। तो ये कोई मार्केट रिसर्च नहीं है, जैसे कि वो ये एजेंसी जिनका नाम लिया जो करती हैं कि साहब सर्फ एक्सेल अच्छा कि निरमा साबुन अच्छा, ऐसा नहीं। या आप एक सीरियस काम कर रहे हैं, जब आप सीरियस काम कर रहे हैं तो वो सीरियस तरीके से होता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है क्वेश्चनर बनने का, ये महीनों लगता है जिसमें वो क्वेश्चनर बनता है, और उसके लास्ट में एक शेड्यूल और होता है जिसमें उस इंसान की सारी डिटेल्स होती हैं कि उसकी इनकम क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके पास कितने खेत है, कितनी जमीन है, कितना पैसा, सब कुछ, जिससे कि हम उसकी सोशल प्रोफाइल, उसकी जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, उसकी रिलीजियस प्रोफाइल, उसकी कास्ट प्रोफाइल से उसके आंसर्स को बाद में मैच करें। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि कौन से लोगों ने क्या कहा, कौन से लोग क्या सोचते हैं, कौन सी लोग किस पार्टी में जाना चाहते हैं, और ये सारी कैटेगरीज जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो जब वो रिसर्चर हमारा, जो इन्वेस्टिगेटर जिसको कहते हैं, जो बच्चा हमारा जाएगा उस क्वेश्चनर को लेके, उसको उसके बारे में सब कुछ पता होता है, और वो उसको 20 बार उसको पढ़ा दिया जाता है, जिससे वो कंफर्टेबली वहां जाके उसको पढ़े, और उसको वही चीज पढ़नी है जो उस क्वेश्चन में लिखी हुई। अगर हम क्वेश्चनर अंग्रेजी में बना दें और बहुत डिफिकल्ट बना दें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत के वर्ड्स हो, तो कोई आदमी समझ पाएगा जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में रहता है। तो हमें ये सोचना है कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं, वो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं हो सकता, गांव में रहने वाला हो सकता है, बिल्कुल जबान नहीं जानता। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, और उसमें कोई भी लफ्ज या वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिस इंटरप्रेट हो सके, या जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इंसान सामने वाला समझ ना पाए कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम क्वेश्चंस बनाते हैं, या बनाना चाहिए, और वो क्वेश्चंस उस बच्चे को बता देते हैं कि धीरे धीरे आराम से तुमको पढ़ के सुनाना है, जिसका जवाब, जिससे जवाब लेने गया हो तो। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्डाइजेशन। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज करना है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। तो हमारे अगर फील्ड में 50 बच्चे गए हुए हैं यूपी के अंदर लोगों का इंटरव्यू लेने, तो 50 बच्चे एक ही तरह से काम करें, क्योंकि सबको हमने ट्रेनिंग दी है। इसलिए जो टेक्निक है उस डेटा कलेक्शन की वो सिमिलर हो। ऐसा नहीं हो कि एक बच्चा कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, किसी ने उनको क्वेश्चनर दे दिया कि आप भर के रखिए, कल सुबह मैं आऊंगा, ऐसे नहीं होता है। जो क्वेश्चनर होगी वो फेस टू फेस इंटरव्यू से भरी जाती है, और हमारा बच्चा जाएगा, 20 मिनट का टाइम अगर उसको लेना है उस आदमी से, या 20-25 मिनट, तो उनके साथ मुस्तकिल बैठा रहेगा, हर क्वेश्चन का उनसे समझाएगा, उनको क्वेश्चन पढ़ के बताएगा, समझाना नहीं है, सिर्फ बताना है, पढ़ना है, और उनका जवाब लिखेगा, और उसको उस पर लिखता चला जाएगा उनके आंसर्स को। किसी को हम क्वेश्चनर देते नहीं कि वो ले जाए और किसी से डिस्कस करे, नहीं, क्योंकि ये एक टेक्निक है जो पूरी दुनिया में ऐसे ही क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर किया जाता है। हम कोशिश ये करते हैं कि जब हमारा इन्वेस्टिगेटर जाता है किसी जगह मिलने किसी से, तो दूसरे लोग उसके आसपास ना हो। द एफर्ट इज दैट वी आर गोइंग टू इंटरव्यू पर्सन एक्स, सो ओनली पर्सन एक्स शुड बी देयर, बिकॉज इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आपको पता है, खासतौर से हम इलेक्शन स्टडीज करते हैं तो हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स में तो हर आदमी एक्सपर्ट है। कहीं गांव में गए, एक आदमी का इंटरव्यू हम ले रहे हैं, 20 लोगों ने घेर लिया, वो अभी बोल नहीं पा रहा, वो सब आंसर दे रहे हैं हर सवाल का, या उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं किसका आंसर तो ये। तो दूसरों की प्रेजेंस में वो इंसान कैसे आंसर दे पाएगा, वो तो प्रेशर में आ जाएगा। कभी कभी डर भी सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, या कभी कभी सोशल जो एक्सेप्टेबल चीज है वही बोलेगा, कोई अपने मन की बात नहीं बोल पाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों से कहें कि भाई आप अलग बैठ जाइए, आप लोग अगर बात करना चाहते हैं तो आपसे भी बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इन साहब का इंटरव्यू करना। तो जिस इंसान का नाम हमारी इस मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग में आया है, हम उसी इंसान का इंटरव्यू करते हैं। हमारा आदमी तलाश करता हो जाएगा, एक दिन नहीं मिला अगले दिन जाएगा, लेकिन इंटरव्यू उसी का लेगा। आमतौर से लोग कहते हैं सब क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा नाम आया तो मेरे भाई का ले लीजिए। नहीं नहीं, भाई का नाम नहीं है, नाम आपका ही आया तो आपका ही लेना है, क्योंकि टेक्निक ये हमें बताती है कि हमें उसी इंसान का लेना है, किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। कभी कभी लेडीज में आ जाता है, हिंदुस्तान में पेट्रियार्की बहुत है, आपको पता है। किसी बच्ची का आ गया या किसी लेडी का आ गया तो उसके घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, तो कुछ नहीं पता, मैं बता देता हूँ इनकी जगह। नहीं, because we also want to know what women are saying. They are an important constituent in the society, and they are in ample numbers. So if women are there in the sampling, we have to talk to the women concerned, or specifically that women in the family, not some other women, because that is how the sampling technique actually works. So therefore, what is important is that we create a proper questionnaire. We have trained investigators who go and administer the questionnaire properly, and then record all the answers truthfully which are given by the respondent. उसके बाद क्या होता है कि हम जो जाता है हमारा बच्चा वहां पर
क्वेश्चन का आंसर ले रहा है तो वो हर चीज लिखता नहीं, उसके पास कोड्स होते हैं, वो कोड को सिर्फ लिख देता है उस पर, क्योंकि उसका इतना टाइम नहीं है, वो तो सामने बात कर रहा है किसी इंसान से, उनके रिस्पॉन्सेज को लिख रहा है। तो उस कोडिंग को करके वो क्वेश्चनर को लाके हमारे पास दे देता है, जहां भी रिसर्च सर्वे हो रही होगी वहां जाके उसको जमा करेगा। फिर उन सारे डेटा की चेकिंग होती है कि प्रॉपर डेटा की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, सही से किया गया है कि नहीं किया गया, जितने लोगों का इंटरव्यू लिया जाना था उनका लिया गया है कि नहीं, कहीं कोडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद उसकी डेटा एंट्री होती है, कंप्यूटर के जरिए सारे डेटा को एंटर किया जाता है बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स में, फिर उसको चेक किया जाता है, फिर उसकी कंप्यूटर से एनालिसिस होती है। जो हम रिसर्च करते हैं उसमें SPSS पैकेज जो है, स्पेशल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज, उसके जरिए उसकी एनालिसिस होती है। फिर उसके बेसिस पर टेबल्स और चार्ट्स बनते हैं, और वो फिर हमारी एनालिसिस में वो क्या नाम है, वो डेटा यूज होता है। तो कोई भी एनालिसिस जो है वो फाइनल नहीं है, क्योंकि जितने भी हम बनाते हैं, व्हेन वी क्रिएट दीज क्रॉस टेबल्स, जो क्रॉस टेबल्स हम बनाते हैं टू फिगर आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम टेबल। तो इंटरेस्टिंग चीज ये कि जिस टेबल के ऊपर मैंने कोई एनालिसिस फॉर एग्जांपल की है और कोई दो चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश की है, उसी टेबल को या उसी टेबल्स को देखकर कोई दूसरा आदमी दूसरी रिलेशनशिप निकाल सकता है और दूसरा इंटरप्रिटेशन कर सकता है। Because social reality is very complex, it is multi-layered, so there is no one single explanation for any fact, which comes before your eyes. So there can be multiple interpretations of the same facts. It depends on how you are looking at it. So therefore the data which is generated as a result of survey research is not something, 14,1500 को होगा, 1650 का। हेलो और दिखाइए, हेलो। ज्योति जी, और भी दिखाइए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ 1 मिनट। तो ये भी जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं सर्वे रिसर्च के जरिए, ये ऐसा नहीं कि एक बार हमने डेटा इकट्ठा किया और हमने कोई आर्टिकल लिख दिया तो वो फाइनल बात हो गई या वो डेटा बेकार हो गया। नहीं, डेटा इज देयर एंड इट कैन बी यूज पुट टू मल्टीपल यूसेज बाय मल्टीपल पीपल, because they can bring out different kinds of relationships by different through these different informations which we have gathered through the survey research. So survey research overall is a very important technique, that way in social science research nowadays, and a lot of quantitative data is being collected through this survey research, especially in election studies, that is being used quite a lot. And in India, the important thing is that we generate, or we are able to actually generate in India the best or the most reliable data as compared to countries in the West. उसका रीजन क्या है? आमतौर से चीजों में होता है कि हमारे यहाँ क्वालिटी खराब है, बाहर अच्छी है, लेकिन इत्तेफाक से सर्वे रिसर्च ऐसी चीज, इसमें इंडिया में अगर कोई कायदे से करे या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, बांग्लादेश में करे, श्रीलंका में करे, हमारे यहाँ बेस्ट डेटा जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया, लोग बड़े जैसे हेल्पफुल नेचर के। हमारे यहाँ हर आदमी, आम आदमी जो है, बड़ा मतलब मनी माइंडेड इस तरह नहीं है कि आपको टाइम मैं कैसे दे दूं भाई, मुझे क्या फायदा होगा। अक्सर लोग होते हैं, लेकिन यूजुअली जब स्टूडेंट्स का मामला आता है पढ़ाई लिखाई का, तो लोग टाइम दे देते हैं। अब यही इलेक्शन स्टडी जब अमेरिका में होती है तो वहां कोई आदमी नहीं मिलता, वहां लोग आमतौर से उसको ईमेल से करते हैं, गूगल फॉर्म से करते हैं, क्योंकि आप किसी घर वहां जा नहीं सकते। आप अपॉइंटमेंट लें तो जाएं तो फिर वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं आपको क्यों 10 मिनट दूं, 10 मिनट का मुझे क्या मिलेगा। तो वहां तो अक्सर जो सर्वेज होते हैं उसमें उनको पैसे भी देने पड़ते हैं लोगों को जिनका इंटरव्यू लेते हैं, और लोग भी नहीं तैयार होते, मतलब बड़ा मुश्किल है। तो वो वहां पर जो सर्वे रिसर्च होती है वो बड़ी चैलेंजिंग है। लेकिन हमारे यहाँ तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। बट आप गांव में, रूरल एरियाज में खास तौर से जाइए सर्वे रिसर्च करने, हमारे स्टूडेंट जाते हैं तो लोग बड़े वेलकमिंग होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। एक आदमी दूसरे घर भी उसको दिखा गया जाता है कि वहां उस आदमी से आप मिल सकते हैं। सो it's a very enjoyable thing also. It's something which you like, which you will enjoy. But the final thing which we need to take into account while we are doing survey research is that we have to be extremely truthful. जो आपके यहाँ चाहे कोई सेशन भी हो इसमें एथिकल रिसर्च में, रिसर्च में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर टेम्पटेशन होता है, जो ये सारे रिसर्चेस जो मैंने बताई वो ये लोग करते हैं, जैसे किसी गांव में गए सर्वे करने, तो अपने काम को आसान करने के लिए उन्होंने कह दिया साहब आपके गांव में तो सड़क बनेगी और बड़ा विकास होगा, उसके लिए हम आए हैं, अब ये डेटा ले जाते हैं और फिर गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट फटाफट आपका सब काम कर देगी। तो लोग जाहिर सी बात है बड़ा आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उससे क्या हुआ, आपने झूठ बोला है। अब आपको पता ही है, एक झूठ दूसरे झूठ तक ले जाता है। फिर अगली बार कोई सचमुच का सही बच्चा गया रिसर्च करने तो गांव वाले उसको दौड़ा लेंगे कि भाई तुम कहां से आ गए, तुम वही हो जो झूठा वादा करके एक साथ गए थे। तो आप तो उनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोगों को ही लगेगा ये भी वही 2 नंबर का आदमी है जो कर रहा है।
तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि जब भी आप सर्वे रिसर्च करें, कोई झूठा वादा नहीं करना है, कोई उनको नहीं कहना है कि साहब इससे आपके यहाँ विकास हो जाएगा और सड़क बन जाएगी, कुछ नहीं कहना। अगर लोग पूछे मैं तो कहे साहब हम तो स्टूडेंट हैं, हम किसी चीज को पढ़ने से, हमारी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज है, हमारे टीचर ने भेजा है सर, हम इसको ले जा रहे हैं, इस पे अखबार में लेख लिखा जाएगा, किताबें लिखी जाएंगी, हो सकता है सरकार वगैरह भी उस पर ध्यान दें और कुछ अच्छा काम कर लें, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाले स्टूडेंट हैं, और अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर दे तो ठीक है। तो क्या होगा कि आइंदा भी जब कोई स्टूडेंट जाएगा तो लोग उसको भी हेल्प करेंगे कि भाई पहले वाला ठीक था। तो आप दूसरे रिसर्चर्स के लिए रास्ता ना खराब करें। आप जब भी इस तरह के रिसर्च करें हमेशा सच्चाई से करें। मुश्किल होती है इसमें, खुद से आपको करना है, थोड़ा आप सोशल स्किल्स भी सीखते हैं, कैसे जाके लोगों से मिलना है, कैसे उनसे रैपो बनाना है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत काम किया इलेक्शन में, वो सब इन्वेस्टिगेटर से ही उन्होंने शुरू किया था, कैसे जाकर इन्वेस्टिगेट किया, लोगों से मिले और उनका क्वेश्चन उनको एडमिनिस्टर किया, उनसे बातें की, तो उन्होंने हिंदुस्तान की रियलिटी को समझा, फिर चीजें लिखी। क्योंकि जब तक आप उस रियलिटी को, हमारे देश की जमीनी हकीकत को नहीं समझेंगे तो कैसे लिखेंगे। कोई आदमी वेस्ट से आया और दूर से इंडिया को देखा और एक आर्टिकल लिख दिया तो वो तो वही लिखेगा जो दूर से उसका व्यू पॉइंट है, लेकिन आप जब उसको अंदर से समझेंगे, और उसके लिए सर्वे रिसर्च जो है बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ कराती है देश की, चाहे वो सोशल स्टडीज में हो, सोशियोलॉजी में हो, सोशल वर्क में हो, पॉलिटिकल साइंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, एंथ्रोपोलॉजी में हो, किसी में भी हो, इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी यूजफुल मेथड। ठीक, तो ये बेसिक आइडिया इसके बारे में। अब इसमें से कुछ सवाल वगैरह आप में से किसी को पूछना हो तो पूछ लें, यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल स्टॉप हियर टू टेक योर क्वेश्चंस। So participants, now session is open. If you have any doubts, any question, so you can ask direct to Mirja sir. हेलो, गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते। हाँ, एक एक लोग पूछिए, सबका आंसर सर दे दी। हाँ यस अमिता, पहले आप हाँ पूछिए। एक एक करके पूछ लीजिए जी। जी सर नमस्ते सर। सर जी बोलिए। एसपीएसएस का जो ट्रायल वर्जन है वो तो फ्री है, बाकी हमको डाटा एनालिसिस करने के लिए वो काफी महंगा पड़ता है सर। तो नहीं सर उसका कोई और तरीका है जो हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकें, कोई टूल? अच्छा, ये देखिए ऐसा है कि जब आप पीएचडी कर रही हैं? यस सर। पीएचडी किस फील्ड में कर रही हैं? सर मेरा कॉमर्स है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा अच्छा, एंड ठीक सर्विस है। क्वालिटी। जी तो देखिए ऐसा है कि ये जो आप सवाल पूछ रही हैं उसके मतलब ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट का, तो आपको एक ही बार कुछ एनालिसिस करानी होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर रिसर्च। सो जी आई सर। थिंक दैट इज समथिंग विच यू कैन डू। मतलब आजकल रिसर्चर्स को तो स्कॉलरशिप भी सरकार दे रही है, तो आपको एक बार कराना है किसी भी आदमी से जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स, किसी से भी एक बार आपको एनालिसिस करानी है तो करा सकती हैं। मतलब आई डोंट थिंक इट विल बी सो एक्सपेंसिव फॉर यू बिकॉज देयर इज नो अदर वे। जी सर। और नेक्स्ट मतलब सर फिर भी सीखने के लिए भी तो मतलब चीज चाहिए अगर रहता कोई है ना। सीख सके तो मतलब इट इज परफेक्ट। बहुत सी वर्कशॉप्स होती जी हैं, सर। जैसे सीएसडीएस भी वर्कशॉप कराता, भी किसी ने यहाँ लिखा भी था कि उन्होंने अटेंड की। और भी वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत से आजकल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स कराते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, या कुछ थोड़े बहुत 100 200 500 रुपया वो फीस ले लेंगे अपनी, क्योंकि ऑनलाइन में कोई खर्च नहीं होता। तो वो आप कर सकती हैं, बहुत से बच्चे सीखते हैं। अगर वो हमने खुद सीख लिया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके रिसर्च में खुद काम करेगा। लेकिन अगर आपको एक बार सिर्फ कराना है तो आप किसी से करवा लें, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन सर। क्योंकि वो तो एक एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को यूज करना है। तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं आता तो मुझे विकास साहब या किसी साहब की मदद लेनी पड़ेगी भाई, वो तो उसका कोई चॉइस नहीं। जी जी हम लोग जी सर सर। ईयर में नहीं एक एक्चुअली बार करते हैं एसपीएसएस पर सर, 10 डेज का हाँ, वही ऑनलाइन। और जगह भी होती है, बहुत जी बहुत लोग करते हैं, मैं अक्सर नहीं देखता सर, वो रहता हूँ बहुत से। एसपीएसएस का ना वर्कशॉप किए थे सर, बट उसके साथ भी वही हुआ कि वो जो ट्रायल वर्जन दिखाए, तो ट्रायल वर्जन डाउनलोड करने के बाद वो रन नहीं किया, 1 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो सर वही कि उसके अलावा भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है क्या जिसको अपन चला सकते हैं जो बेटा देखो, उतना मुझे कॉस्टली ना हो सॉफ्टवेयर की, जैसा? मतलब मैं उस पर कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता। अगर आपके कहाँ कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोई टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, जानने वाले लोग, उनसे पूछिए। वो शायद कुछ आपको, आजकल बहुत से नए आ गए हैं वर्जन्स, वो कुछ बता सकें इसके बारे में कि वो कहाँ से और एक्सेस कर सकते हैं उसको। मतलब मुझे इसके बारे में जी सर। श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक टेक्निकल जी चीज है। तो किसी से जी पूछिए, मेरे ख्याल से रास्ता जरूर कोई होगा। राम प्रताप जी। जी सर, धन्यवाद सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसा कि अभी आपने बोला कि बहुत सारी ऐसी सर्वे एजेंसीज हैं जो
रिलायबल डेटा सैंपल साइज नहीं लेती हैं, जिस वजह से उनके रिजल्ट्स और ये सर्वे वगैरह उतने ऑथेंटिक नहीं हो पाते हैं। सर CSDS एज यू मेंशन के सर बहुत ही रेपुटेड सर्वे एजेंसीज है सर। 2004 से उसके रिजल्ट देखते आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन में मोस्टली टाइम उनके सही जाते हैं सर। लेकिन सर मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि अभी 24 के जो जनरल इलेक्शन हुए, हरियाणा इलेक्शन हुए सर, ऐसी क्या गलती हुई या क्या ऐसे कुछ चीजें हुई जिनकी वजह से CSDS जैसी रेपुटेड संस्था के भी जो रिजल्ट्स थे वो सही नहीं हुए? देखिए, ऐसा है कि 2004 के बाद से कोई भी इलेक्शन सर्वे हमने किए ही नहीं, एग्जिट पोल हमने उसके बाद से इससे विड्रॉ कर लिया, बस हुई ना। तो 2004 के इलेक्शन के बाद से कोई भी इलेक्शन में जो आप देखते हैं ना, इसमें किसी में CSDS का सर्वे नहीं आता। हम प्री पोल सर्वे हमने बंद कर दिया, अब सिर्फ हम पोस्ट पोल सर्वे करते हैं इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा, आपको पता है, मार्केट एजेंसीज आ गई, बड़ी पॉलिटिक्स, बहुत चीजें आ गई, एंड यू नो मतलब हाउ थिंग्स ऑपरेट इन द मार्केट, जहां बड़े बड़े शार्क्स हों। तो हमारा पर्पस ताली बजवाना नहीं है ना पैसा कमाना है, हम तो एकेडमिक सर्वेस करते हैं। तो अब हम करते हैं क्या है कि अब हम इलेक्शन के बाद सर्वे करते हैं, ये जानने के लिए कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और उसके बेस पर हम लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हैं। लेकिन अब ये एग्जिट पोल कि कौन जीत रहा है और कौन जीतेगा, उस गेम से हम लोग बाहर हो गए, क्योंकि वो गेम आपको पता ही है कैसा हो गया है कि उसमें मतलब बिकॉज हमारा पर्पज ही नहीं था वो, तो वी आर नॉट देयर। बट लेकिन जिस वक्त तक हमने इलेक्शन के बारे में कहा कि कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिलेंगे, आज तक 96 से चल रहा था, किसी भी इलेक्शन में 2-3% मैक्सिमम आगे पीछे हुआ, उसके अलावा कभी भी हमारा रिजल्ट आगे पीछे नहीं हुआ। बिकॉज उसका रीजन नहीं कि हम बहुत काबिल हैं, मसला ये कि जैसे होता है ना कि पैथोलॉजी की लैब होती है ना, डॉक्टर आपसे कहता है फला जगह ब्लड टेस्ट कराओ, वो लैब ज्यादा पैसे ले रही है, आपके मोहल्ले में कोई लैब है वो कम पैसे में कर रही है, तो डॉक्टर क्यों कर रहा है वहां जाओ। कभी कभी डॉक्टरों को भी उससे कमीशन मिल रहा होता है, लेकिन यूजुअली अच्छा डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर भी कह रहा है कि वहां जाओ, क्योंकि उसको पता है कि वो प्रोसीजर जो है उसका रिलायबल है, इसलिए वहां से जो टेस्ट रिजल्ट आएगा वो रिलायबल होगा। हो सकता है आपके मोहल्ले वाला भी टेस्ट कर देगा वो आधे पैसे में, लेकिन वो नहीं करे, बात समझ रहे हैं। तो मसला ये है कि वो प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे आपने कभी देखा हो, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शंस या नेशनल इलेक्शन, उसके फौरन बाद 8-10 आर्टिकल्स द हिंदू अखबार में आते हैं। आजकल हमारा मुस्तकिल कोलैबोरेशन द हिंदू से है, तो उसमें जब भी हमारे लेख आते हैं, पूरे एक पेज पे लेख होंगे और लास्ट में एक सेक्शन होगा जिसमें हमारी पूरी मेथोडोलॉजी लिखी होती है कि ये जो हमने लेख लिखे हैं ऊपर जितने हैं, ये कैसे कहां से डेटा आया। तो उसमें जो बातें मैंने आपको बताई, ये बहुत शॉर्ट में 8-10 लाइन में वो लिखी होती है, जिसको कहते हैं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। हमने डिस्क्लोज किया ना, बस समझे। जैसे कि कोई अच्छी लैब होगी तो पूरा लिखती है कि ये सारे टेस्ट किस टेक्निक से हमने किए, समझ रहे, क्या टेक्निक हमने फॉलो किया। आपने किसी अच्छे को उसका पर्चा देखिए, आपके मोहल्ले वाली हाथ से लिख के दे देगा कि ब्लड शुगर इतनी और फलानी चीज इतनी, और आपको लगेगा कि साहब बड़े सस्ते पैसे में दे रहा है। तो ठीक है, उसने भी अपना, उसका भी बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो कभी कभी सही भी हो सकता है, बट ये आपकी जिंदगी का सवाल है, तो आप रिस्क नहीं लेते, आप अच्छी उसमें लैब में जाते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं। तो वैसे यहाँ भी है कि जब हम सही टेक्निक को फॉलो करेंगे तो वो चीज सही होगी, सिंपल एज दैट। इट्स नॉट दैट वी आर वेरी गुड एंड दे आर नॉट, but they are market agencies and they are basically concerned with making money and they are into everything else also. So they have their own compulsions. We don't have that. ओके, थैंक यू सर। अर्चना कुमारी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक क्वेश्चनेयर फॉर्मुलेट करती हूँ, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि ये क्वेश्चनेयर सही है या नहीं? मैं सुपरवाइजर से अपने दिखाऊंगी या पीयर्स से या फिर कोई एक्सपर्ट से? नहीं, आप पहले तो सुपरवाइजर को दिखाइए, सुपरवाइजर उस पर आपको इनपुट्स देंगे, ठीक है। आप उस पर काफी सोच समझ के पहले तो आपने क्वेश्चनर बनाई होगी, फिर सुपरवाइजर को दिखाइए, बिकॉज सुपरवाइजर के अंदर ज्यादा इंसाइट है ना, तो सुपरवाइजर देख सकते हैं कि जो सवाल आपके हैं वो उस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। मतलब आप बात समझ रही हैं, ये सवाल समझ लीजिए, पहले आपको खुद से कैसे सवाल अच्छा पता लगता है, सवाल कैसे अच्छा है, मैं आपको एक छोटा सा इसमें बता देता हूँ कैसे पता लगेगा मेरा सवाल अच्छा है। सवाल खुद से जब आप पूछें, जैसे आपको कोई चीज जाननी है, तो जब हम, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया, जब हम क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं, और किसी बच्चे से पूछा, आप लोगों से अक्सर क्लास में हमारे भी होता है, सवाल पूछो तो बच्चे को कुछ नहीं समझ, उसने कहा सर एक बार और बता दीजिए, इसका मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बच्चा पूछता है सर आपने ये जो बात बताई उसमें ये जो बताया है इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो हमको फौरन लग जाता है कि इस बच्चे ने फॉलो किया है, वहां पे जाके इसको कुछ कठिनाई हुई है, उसको हम रिजॉल्व कर दें, बस समझ। तो आपका सवाल बताता है कि आप किसी चीज को कितना अच्छा जानते हैं।
जितना पेनिट्रेटिव क्वेश्चन होगा उतना पता लगेगा कि आप उस चीज को कितना जानते हैं। तो जब आप उसी सवाल को खुद से पूछेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस सवाल में दम कितना है। बस समझ रहे, सिंपल सवाल पूछ लिया तो उससे कोई बात नहीं हासिल हुई, लेकिन वो जब आप जैसे अभी आपने देखा होगा ना कि अभी भारत के गुकेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन हो गए चेस में, तो अगर सारी गोटियां वो सीधे सीधे बढ़ा रहे होते तो वर्ल्ड चैंपियन थोड़ी होते। तो वर्ल्ड चैंपियन जो चेस का, उसके दिमाग में एक प्लान है कि हमको पहुंचना वहां, कैसे घूमते फिरते वो वहां पहुंचेगा, यही तो उसकी स्किल है। मतलब भाषा रिसर्च में कोई चीज डायरेक्ट नहीं होती कि मैंने आपसे डायरेक्टली 4 सवाल पूछा, 4 सवाल आपने बता दिया। हमको तरीका होना चाहिए कि कैसे सवाल पूछें। भाषा में जैसे मैं आपको उसका एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे एक पुलिसमैन, एक आइडियल पुलिसमैन है समझ लीजिए, किसी फिल्म में शायद आपने देखा होगा, उसको कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है, तो जाके सबसे पूछेगा किसने मर्डर किया, तो बता देंगे लोग। तो वो क्या करेगा, वो जो उसकी एक तरीका, इसको कहते हैं डिटेक्टिव हर्मेनॉटिक्स, वो जाके उन लोगों को टच करेगा जो उस मर्डर से सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है। हम आप जो राय कायम करेंगे देख के कि फला लड़का है वो तो बड़ा रो रहा है, उसके फादर की डेथ हुई, वो तो मर्डरर होगा नहीं, और उसकी वाइफ भी बहुत रो रही है चीख चीख के, वो भी मर्डरर नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है, कैसे माने। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि घर के ही कोई लोग इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस वाला कैसे सोचेगा कि कौन बेनिफिशियरी है इस मर्डर का, तो सबसे पहले वो वाइफ और बच्चे को टच करेगा और रिलेटिव्स को, उसमें से कोई उसको मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उनके पास जाके वो सवाल पूछेगा जो उसके पास सवाल है, इतने पेनिट्रेटिव कि आप उस दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपका फोन कहाँ है, मतलब इस तरह के 10 सवाल वो पूछेगा जिससे उसको अंदाजा हो जाएगा कि इस इंसान पे डाउट करना है कि नहीं करना है। समझ रहे, तो वो सवाल इतने कॉम्प्रिहेंसिव होंगे और इतने इन डेप्थ होंगे कि आप उससे बच नहीं पाएंगे अगर वो एक आइडियली अच्छा पुलिसमैन है, और उन सवालों के जरिए वो नैरो डाउन कर देगा कि ये 2 लोग बचते हैं, इन्हीं में से किसी एक ने किया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि आपके सवाल कितने अच्छे हैं कि फौरन उसका जवाब जब आ रहा है तो उस चीज, उस गैप को कवर कर दे रहा है जो आप कवर करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू नो। So that is how your question should be framed. So it has to be given a lot of thought. Then you show it to your supervisor. Maybe there are some experts who are there, and then you do a trial run also. आप एक रफ क्वेश्चनर जो आपने बनाया, जो भी आपकी ड्राफ्ट फाइनल नहीं है, उसको आपने उसका ट्रायल रन किया, कुछ लोगों का आपने क्वेश्चनर भेजा, कुछ बच्चों को करवाया अपने शहर में ही, अपनी यूनिवर्सिटी में ही, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिस्पॉन्स कैसे आया, क्या उससे मिला या क्या समझ में आ रहा। फिर आपको लगेगा इसमें कुछ कमी है तो उसको आप रिफॉर्म करके फिर फाइनल क्वेश्चनर जब आपका निकल के आएगा जो आपके उन सारे सवालों के जवाब दे रहा होगा जो आप पूछना चाहती हैं। तो इट इज एन एक्सरसाइज विच यू लर्न विद टाइम। मतलब देयर इज नो एग्जैक्ट थिंग, बट द पॉइंट इज दैट क्वेश्चंस हैव टू बी वेरी पेनिट्रेटिव एंड वेरी डीप so that you can unearth the facts which you want to know. Understand, sir. Thank you, sir. ठीक है भाई, okay, thank you. I have two questions, sir. Sir, as you said in very firstly, you said that as we deal in social sciences, you can't construct a wall in between qualitative and quantitative research very rigidly in social sciences, sir. So, when we talk about survey researches, do you think that we can choose only quantitative methods in social sciences as our subject is political science? So, can we choose only quantitative methods based on numbers in order to conclude in qualitative subject, that is political science we are dealing with? So, sir, what are your views in this aspect? I got your question. You see, the point is that for example, in political science, in political science, you are studying political phenomena at any time, international level, national level, village level, wherever, you're studying that political phenomena. And as I mentioned earlier, we used to just give explanations of things. Through arguments, we were trying to explain things. Now, what is the present trend is, jisko kehte hain mixed method. We bring qualitative and quantitative together. And then, मतलब what you are doing actually, you are telling a story. मैं आपको एक अलग से कहानी सुनाता हूं जो आपको दिमाग में स्टिक करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी आप में आजकल तो खैर बहुत सी नए नए गैजेट्स आ गए हैं। आप आज से 25 साल पहले चले जाइए, आपके खानदान में किसी का कोई शादी हुई जिसमें आप नहीं जा पाए, किसी रिलेटिव की, दूसरा कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार गया, तो विकास साहब आके आपको कहानी सुना रहे हैं वो शादी कैसे हुई, और आप कह रही हैं कि पूरी डिटेल में बताना, हर चीज मुझे देखनी है। तो क्या हुआ, इनके पास कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स भी हैं, तो जो इवेंट शादी में हुआ ये बता रहे हैं और आपको फोटो भी दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, आप अपने को प्लेस कर पा रही है वहां। अगर ये सिर्फ कहानी सुनाते तो वो बात उतनी अच्छी तरह नहीं एक्सप्लेन हो पाती। बात समझ रहे?
मैं एक कहानी आपको ऐसी बताऊं कि इन्होंने जो जो इवेंट बताया उसकी फोटो भी दिखाई, देखो ये ऐसे हुआ, ये पहले ऐसे हुआ, ये ब्राइड ऐसे आई, ये ग्रूम ऐसे आया, ये फना हुआ, ये फना हुआ, सारे जितने भी शादी में जितनी भी रस्में होती सब इन्होंने आपको बहुत एक्सप्लेन की, फोटो सबकी आपको स्टिल दिखा रहे। तो क्या हुआ, वो फोटो उस एक्सप्लेनेशन को आपके दिमाग में एक पिक्चर बना रही, और आप उस शादी में काफी हद तक पहुंच गई मेंटली, जितना आप सिर्फ कहानी से नहीं पहुंचती, चाहे कितनी भी अच्छी कहानी सुनाते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जब मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, मैं भी एक कहानी सुना रहा हूं आपको। मैं सिर्फ कहानी सुनाता आपको इस इलेक्शन की, तो आप कहानी आपके दिमाग में उस तरह का इंप्रिंट नहीं छोड़ती, लेकिन जब मैं साथ में ये डेटा के टेबल्स और पाई चार्ट्स और सारे डायग्राम्स दूंगा, तो फिर वो पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। और पर्पस क्या है रिसर्च का? किसी कॉम्प्लेक्स चीज को एक्सप्लेन करके सामने लाना, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना। इतने लोग बैठे, सब ने देख लिया फिल्म, सबके समझ में आ गई वो कहानी। You are successful, that's what you are trying to do. So modern researches, contemporary researches rather, not modern, contemporary researches in social sciences are usually with mixed methods. You are not supposed to worry about the method. You will say that, आपसे कोई पूछेगा कौन सा मेथड, आपने कहा मैंने 10 मेथड ही यूज किए हैं, 5 यूज किए हैं, क्योंकि जो जब जरूरत हुई, जैसे मैंने बताया ना, जिसकी जब जरूरत हुई मैंने उसको यूज किया। आप किचन में खाना बनाती हैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रही होती। इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना अच्छा बनना इंपॉर्टेंट है। क्या आप कहेंगे बाद में मैंने तो 20 इंस्ट्रूमेंट यूज किए फिर भी अच्छा नहीं लग रहा? अरे साहब, अच्छा लगना जो है उसका ताल्लुक है आपके इंस्ट्रूमेंट से नहीं, अच्छा है तो अच्छा है। Are you getting my point? So instruments are not important. What the end product is important. So that's the reason why we use mixed methods. और कोई सवाल है रिफा जी? रिफा सवाल बहुत पूछती हैं, सवाल अच्छा पूछती हैं। चलिए सेशन सवाल सारे अच्छे होते हैं साहब, तो हमें नहीं अच्छे लगते हैं। प्रियंका, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ विशाल जी, जी सर पूछना चाहते हैं कि आप सर्वे के दौरान प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोल रहे थे कि मतलब जो हम लोग सैंपल लें जो पूरा पॉपुलेशन से मतलब अच्छी तरह वो डिस्क्राइब करे। क्या सर ये कोई रूल है या फॉर्मूला है कि सर हाउ डू वी डिसाइड द नंबर ऑफ सैंपल्स वी टेक फ्रॉम द पॉपुलेशन सच दैट इट रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द पॉपुलेशन? ऐसा कुछ रूल या फॉर्मूला दिया गया है क्या सर? रूल फॉर्मूला इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप फॉर एग्जांपल पूरे यूपी स्टेट का आप सर्वे कर रहे हैं, कोई समझ गए, यूपी एक इंडिया का सबसे बड़ा सबसे हाई पॉपुलेशन वाला स्टेट है। तो अब इतने लोगों का जब आप सर्वे कर रहे हैं, तो आप कहें साहब मैंने 500 का सैंपल लिया, तो वो जरा रीजनेबल नहीं लग रहा है, बात समझ रहे हैं? तो अगर आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो सैंपल का एक साइज एक रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब आपने कह दिया मैं 5000 लोगों से इंटरव्यू करेंगे, तो ठीक है 5000 लुक्स रीजनेबल, समझ रहे हैं, लेकिन बट 500 लुक्स वेरी स्मॉल। तो Yes, sir. वो डिसाइड कैसे करना है, मैं उसका तरीका बताऊं आपको। जैसे कि होता है कि समाज में इतनी विविधताएं हैं, समझ रहे हैं, यूपी इतने बड़े स्टेट में, तो उन विविधताओं को रिफ्लेक्ट करने का 500 होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लोग 5 आए उसमें, फॉर एग्जांपल आपके सैंपल, तो 5 लोगों से बात करके उस पूरे सेक्शन की विविधता को सही से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो उस हर सेक्शन के रीजनेबल नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, मतलब हर कास्ट के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोग हों, कम से कम हर कास्ट ग्रुप के 100-150 लोग हों, हर रीजन के 100-150, 200, 300 लोग हों, मतलब तभी तो कुछ उसके बेस पर एक जनरलाइज करना है ना, क्योंकि वो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस तरह के लोग क्या सोचते हैं, बात समझ रहे हैं? तो उस सेक्शन की अगर रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन होगा तभी। अच्छा, वो जितना बड़ा आपका यूनिवर्स होता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग पूरे इंडिया का करते हैं, तो करीब 35,000 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, और बड़ा हो गया। जैसे छोटा आप अपने शहर का कर रहे हैं, तो 500 लोगों का इंटरव्यू कर लीजिए, ठीक है। तो वो कुछ रीजनेबल लगना चाहिए जो उसकी सारी डाइवर्सिटी को कैप्चर कर सके, बस ये। लेकिन मेन चीज ये है कि टेक्निक इंपॉर्टेंट है, अगर टेक्निक फॉलो होगी तो वो सारी विविधताएं उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपके सैंपल में, ये इंपॉर्टेंट। सर एग्जैक्टली मतलब कौन सा नंबर को हम लोग रीजनेबल नंबर माने सर? मतलब नहीं, ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्स पे। ओके, अगर मतलब उसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपका यूनिवर्स समझ लीजिए कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ लोगों, आमतौर से तो बहुत बड़े यूनिवर्स को नहीं टेकअप किया जाता, क्योंकि किसी इंडिविजुअल रिसर्चर के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर
1 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें जैसे मैंने बताया आपको 5,000 लोग, अगर आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो 7-8 हजार लोग भी आप इंटरव्यू कर सकते हैं, बट दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल रिसर्चर। हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम पूरे नेशनल लेवल पे कर लेते हैं। आपको एज एन इंडिविजुअल रिसर्च करनी है तो आपके लिए तो सिर्फ एक शहर या एक गांव या कुछ गांव या 1-2 शहर मैक्सिमम होंगे जहां आप सर्वे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको 1000-1500 का अगर आप सैंपल लेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। यू डोंट नीड टू टॉक टू मोर देन दैट नंबर ऑफ पीपल। जी सर, जी थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई सवाल है? सर और एक सवाल पूछना था सर। पूछे। जैसे सर हम लोग पर्पसिव सैम्पलिंग, कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग आप बता रहे थे जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आता है, और रैंडम सैम्पलिंग में ये बाकी से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग बता रहे थे सर। सर ऐसा कोई बात है क्या सर, अगर आप पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और तो आपका देयर इज अ चांस ऑफ बायसनेस, और सिंपल रैंडम वगैरह कर रहे हैं तो आपका रिसर्च और रिगर नजर आएगा और रिगरसली आप कर रहे हैं और एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन और रिसर्च इज मच एक्यूरेट, ऐसे कुछ बात है क्या सर? हाँ, देखिए उसकी बात सिर्फ ये है कि दैट इज अगेन ए वेरी क्वालिटेटिव क्वेश्चन। यू हैव टू सी व्हाट यू आर रिसर्चिंग। If a better method is available, but for want of convenience you go for a easier method, then that is wrong. आप बात समझ रहे हैं? जहां पर आपके पास पॉपुलेशन की लिस्टिंग अवेलेबल है, उनके नाम अवेलेबल हैं, उनको लिस्ट कहीं से अवेलेबल हो सकती है आपको, और उसमें फिर आप मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग ना करें और आप कहें कि सर मैं तो कन्वीनियंट सैंपलिंग कर लूंगा, तो वो गलत बात है। बस में, क्योंकि आपके पास जैसे नहीं होता, डॉक्टर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए तो जब एक अच्छा रास्ता अवेलेबल है, डॉक्टर हमारी उंगली तभी काटेगा जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे उसके इलाज के ना। या दांत का अच्छा डॉक्टर दांत आपका तभी उखाड़ेगा, सड़क चाप डॉक्टर तो फौरन दांत ही उखाड़ देगा, बात ही खत्म हो गई, दांत तो ठीक हो ही जाएगा दादा आपका, सारे 32 निकाल दे कभी दर्द नहीं होगा लाइफ में, लेकिन दैट इज नॉट क्योर ना। अच्छा डॉक्टर तो दांत को बचाने की सारी कोशिश करेगा, जब लास्ट में कोई रास्ता नहीं बचा तो उखाड़ेगा उसको। बात समझ रहे? तो साइंस का तरीका, साइंटिफिक तरीका ये कि जो सबसे अच्छा मेथड है उससे शुरू होना है, जो नहीं हो पाया तो उससे हल्का वाला, नहीं हो पाया उससे हल्का वाला। नहीं तो आप कहें साहब मैं तो स्नोबॉल सैंपलिंग करूंगा, वो सबसे आसान है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग तब करनी है जब सिचुएशन वो हो, क्योंकि आपको फौरन आपका सब्जेक्ट देखा जाएगा ना। जब आप किसी को बताएंगे कि मैंने ये सैंपलिंग करी है और ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है, तो कहेगा ये वाली क्यों की, वो वाली क्यों नहीं करी, तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले देखना है कि हमारे काम के लिए जो सबसे अच्छा टूल है वो कौन सा है। पहला टूल न यूज हो पाए फॉर सर्टेन ऑब्वियस रीजंस, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। ठीक है जी सर, जी थैंक यू सर। चलिए, और किसी का सवाल है? अदरवाइज अब एंड करें हम लोग सेशन को। हाँ, आई थिंक अब हमें एंड करना चाहिए रिफा जी। जी। Thank you, sir, for this insightful lecture. And I really, actually, we really appreciate the time and effort that you have invested in sharing the knowledge. And, sir, the lecture was really very informative. It was, and at the same time, when you started defining the survey research, and very beautifully you go through qualitative and then explained the sampling procedure and the probability and non-probability sampling techniques. This is something which is perplexing to almost all the researchers, I think. And sir, it will definitely going to serve as a very good lecture for all of us as a researcher. तो सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और thank you all, and it was nice interacting with you. The only thing with problem with us is that quite often we have a lot of other engagements, so we are tied up. But anyway, fine, it happened. I did not want to miss the time. So thank you Vikas sir, Rifa, and all the other friends. Thank you. Thanks. Okay, thank you.